ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ اردو کو نہیں جاننے والے ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو کہ انگلش جاننے والے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے درمیان پھر انگلش میں تبلیغ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ جامعہ انگلش پر بھی مکمل فوکس کیا جاتا ہے جو کہ ماڈرن ایجوکیشن ہے۔ تو الحمدللہ میں اپنی جامعہ المدینہ کے ٹیچر صاحب علی جناب ماسٹر وسیم صاحب کو دعوت ہو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین انداز سے سامعین کو بتائیں کہ انگلش لینگویج یا انگلش زبان یا ماڈرن ایجوکیشن کا کیا سسٹم رہتا ہے۔ مائک پر تشریف لائیں اور سامعین کو لوگ منور ہو چلے ایجوکیشن یہاں پر ماڈرن ایجوکیشن پڑھاتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے جامعہ میں ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن بھی پڑھائی جاتی ہے۔ If I talk about before 2018, اگر سے پہلے there was no English and Math in مدرسہ، مدرسوں کے اندر انگلش اور میتھ پڑھانا کوئی تصور جو ہے بالکل بھی نہیں تھا، لیکن جو بچہ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے اسے 8 سال ہم نے اپنے لیے سکھایا، کھانے کھانے کا سنت طریقہ، نمازوں کا سنت طریقہ، ہر چیز ہم نے اس کو سکھائی، پر 8 سال کے بعد اس کا بچپن ہمارے ساتھ گزرا، اس کی جوانی ہمارے ساتھ گزری، لیکن جب وہ بچہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ فارم بھر نہ پائے کسی کی ہیلپ لے فارم فل کرنے کے لیے یا پھر پلیٹ فارم پر ٹکٹ کرنا ہو اس کو، تب کسی کی ہیلپ لینی پڑے تو یہاں پر ایک بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ایک آج ہم نے اس کو انگلش اور میتھ پڑھائی ہوتی اور یہ فارم فل کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہ ہوتا۔ پلس جامعہ المدینہ از ورکنگ ان ہول انڈیا، پورے انڈیا میں 190 سے زائد جامعہ المدینہ ورک کر رہے ہیں۔ اونلی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ آف انگلش، خالی انگلش کا لکھنا پڑھنا نہیں بلکہ بچے کا ہائی اسکول، اس کا انٹر، اس کا گریجویشن اور اس کرنے کی چاہ ہے تو اس کے بعد اگر وہ بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے یا ٹیچر بننا چاہتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کو ہر چیز مہیا چلتی ہے، وہ چلتی ہے NCERT جو بکس انگلش میڈیم بڑے بڑے اسکولوں میں چھپائی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں پر انگلش تو انگلش میں ہے ہی، اس کے علاوہ میتھمیٹکس انگلش میں ہے، ہسٹری، پولیٹکس، جغرافی، اکنامی، to grade something our student، ہمیں اپنے طلبہ کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ لائق بنانا ہے۔ کیا آپ کا من نہیں کرتا کہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان میں سے IIT کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، ان کے لیے ایک ایسا جامعہ کھول رہی ہے کہ جو کوچنگ کا خرچ اینوئل ایکسپینس آف دیٹ کوچنگ، جس کوچنگ کا سالانہ خرچ تقریباً 2 لاکھ بیٹھتا ہے، وہ کوچنگ دعوت اسلامی ان طلباء کرام کو جو بچے ڈاکٹر بننے میں انٹرسٹڈ ہیں فری آف کاسٹ کروائی ہے۔ بھائیوں ہمیں بس ضرورت ہے آپ کے ساتھ کی۔ میں سرتاج عالم خبر 7 سے، ہم لوگ ہیں اتراکھنڈ کے ہلدوانی میں، اور ہلدوانی میں ابھی آپ جو تصویریں دیکھ رہے تھے یہ وارسی کالونی میں مدرسہ ہے دعوت اسلامی کا۔ جامعۃ المدینہ نام سے دعوت اسلامی کے دیس دنیا کے اندر مدرسے چلتے ہیں اور دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی ان مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ 106 اسٹوڈنٹ ہیں اور آج ان کے ایگزام کا آخری دن ہے، تو بچوں کے چہرے پر بھی الگ خوشی ہے۔ اس بارے میں بھی جانیں گے اور یہ مدرسہ آخر کس کس طرح سے اس شہر کی خدمت کر رہا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صادق اتاری۔ محمد صادق اتاری، آج ایگزام کا آخری دن ہے، کیسا محسوس کرتے ہیں اور کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ہم نے پورا سال یہ پڑھا اور ہمیں بہت مزہ آیا یہاں پر، اور ہمیں درس نظامی پڑھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہمیں ماڈرن ایجوکیشن بھی پڑھایا جاتا ہے، انگلش میتھ، اور جامعۃ المدینہ جیسا ہم نے کوئی مدرسہ دیکھا نہیں آج سے پہلے۔ الحمدللہ ہمیں 2 سال ہو چکے ہیں اس مدرسے میں اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ مزہ آ رہا ہے، لیکن اب ایگزام ختم ہوئے ہیں، پریشر کم ہوا ہے، تو اب گھر بھی جائیں گے میرے خیال سے، اس کی خوشی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عثمان رضا۔ محمد عثمان رضا، آپ نے بھی پیپر دیے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تو کون سے آپ نے ابتدا کے دیے ہیں یا اولا کے دیے ہیں؟ کون سے کلاس کے پیپر دیے ہیں آپ نے؟ الحمدللہ عز و جل ہم نے یہاں پر عالم کورس کی 2nd کلاس کے پیپر دیے ہیں۔ اچھا عالم کورس کے، تو آج آخری ہو گیا آپ کا ایگزام؟ جی آج ایگزام ہمارا فائنل ہو گیا۔ فائنل ایگزام ہوئے، یہ مدرسہ کس طرح سے خدمت کر رہا ہے اور اب آخری دن ہے آج کے ایگزام کا، کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو گھر جانے کی خوشی ہوگی؟ جی الحمدللہ پورے سال یہاں پر تعلیم حاصل کی، جس طرح ہم پر پورے سال الحمدللہ تعلیم کا بھی اور یہاں شہر کا بھی مطلب پریشر رہا، تو الحمدللہ عز و جل آج ہمارا ایگزام فائنل ہوا تو ہمارے سر سے یہ بوجھ ہلکا ہوا اور ہمیں بہت زیادہ گھر جانے کی بھی خوشی ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے اور یہاں پر ہم نے پہلے ہی سال تعلیم حاصل کی، ہم یہاں پر بہت اچھا محسوس کیا ہم نے یہاں پر تعلیم حاصل کر۔ بہت بہت شکریہ۔
जिस तरह CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं या उत्तराखंड बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक उसी तरह मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के भी एग्ज़ाम होते हैं और अलग अलग जगहों पर ये कोशिशें होती हैं कि उनको इस्लाम की तालीम दी जाए और उसके साथ साथ जो मैथमेटिक्स है उसका भी इनको तालीम दी जाती है। उसके अलावा हिंदी अंग्रेज़ी की भी तमाम तालीम दी जाती है जिससे कि तमाम तरह की जो इल्म है उनसे उनको मालामाल किया जा सके। तो ये खिदमतें अंजाम दी जा रही हैं वारसी कॉलोनी जवाहर नगर में मदरसा जामिअतुल मदीना। उनके कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, प्रिंसिपल भी हैं और हल्द्वानी के शहर काजी भी यहाँ पर आज खुसूसी तौर पर यहाँ पर पहुँचे। मैं उनसे भी बात करूँगा। जामिअतुल मदीना के प्रिंसिपल हैं नाजिर मिसबाही साहब जो कि मुफ्ती हैं और उनसे हम बात करते हैं इस मदरसे के बारे में, उसके साथ साथ दावत इस्लामी इंडिया में किस तरह से काम करती है उसके बारे में भी बात करेंगे। हाल है आपका मुफ्ती साहब खबर 7 के लाइव पर। मैं जानना चाहूँगा आज मदरसे में क्या हो रहा है और किस तरह से काम चलता है। आज मदरसे में हमारे जामिअतुल मदीना फैज़ान गरीब नवाज़ हल्द्वानी में आज तलबा किराम का लास्ट डे है। आज एग्ज़ाम मुकम्मल हुए हैं और ये 23 फरवरी से अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम का सिलसिला और आज 6 मार्च को ये मुकम्मल हो रहा है। तो इस एग्ज़ाम के मुकम्मल होने पर हमने तमाम मरहूमीन के लिए ईसाल सवाब की महफ़िल सजाई है और जिस ईसाल सवाब की महफ़िल में हमारे 106 स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं और साथ के साथ जो है और अवामी इस्लामी भाई भी यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की हम बात करें ऑल इंडिया तो तकरीबन 244 जो दावत इस्लामी के तहत इदारे चल रहे हैं और इनमें पढ़ने वाले जो तादाद है तलबा इकराम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की तो तकरीबन 15,000 वो तादाद है कि जो हमारा एक शोबा है शुअबतुल इम्तिहान जी। तो इसके तहत जो है 15,000 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम दे रहे हैं और इन एग्ज़ाम देने का भी और बड़ा प्यारा एक निराला अंदाज़ है वो ये कि हमारे यहाँ पर दूसरी जगह से हमारे उलमाए किराम एग्ज़ाम की जो है निगरानी करने के लिए आते हैं और उन्हीं की निगरानी में उन्हीं की मौजूदगी में जो है एग्ज़ाम होते हैं और जैसे ही 11:30 बजते हैं 8:30 बजे से ये पेपर का सिलसिला रहता है। 11:30 बजते ही कॉपियाँ जमा करते हैं और वो कोरियर सीधे हमारे जो सेंटर है आगरा वहाँ पर कॉपियाँ भेज देते हैं और वहीं सेंटर में क्या है कॉपियाँ चेक हो रही हैं और इनका रिज़ल्ट अल्लाह ने चाहा 16 मार्च में इंशाल्लाह आउट होगा। तो मुफ्ती साहब क्या यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन ले सकता है, उसकी फ़ीस क्या है जी आप बता देंगे? बहुत बेहतरीन आपका ये सवाल है, माशाल्लाह हमारे सरताज भाई ने सवाल किया है। दरअसल दावत इस्लामी जो इंडिया सतह पर दीन का काम कर रही है मुआशरे में भलाई फैलाने के लिए, अच्छाइयाँ फैलाने के लिए, तो इसमें जो यहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं दावत इस्लामी में उनको जो है फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाता है। अच्छा, मुफ्त में कोई फीस नहीं ली जाती। तो यहाँ तो बच्चे परमानेंट रहते होंगे पूरे साल? जी जी जी। तो उनके खाने पीने का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, तमाम सब चीज़ें होती हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपकी? फ्री ऑफ कॉस्ट है और माशाल्लाह तीनों टाइम का खाना यहाँ पर सुबह में नाश्ते का भी बेहतरीन इंतज़ाम, दोपहर में खाने का भी बेहतरीन इंतज़ाम और शाम में भी, और इसकी चेकिंग भी होती है कि खाना किस क्वालिटी का बन रहा है। फिर वहीं बच्चों के लिए उनके रहने सहने का भी फुल फैसिलिटीज़ रहती हैं। कपड़े धोने के लिए हमने मशीनों का भी तो 106 स्टूडेंट अभी यहाँ पर हैं जी जी। किस किस क्लास के अंदर आप बता देंगे यहाँ पर? अब ये जो है हमारे यहाँ पर एक दर्जाए सानिया तक की क्लास मौजूद है जी जी। और यहाँ पर जो है दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन का भी निज़ाम है। मतलब ये कि यहाँ पर हमारे यहाँ 6, 7 और 8 तक के अभी तलबा इकराम यहाँ मौजूद हैं और ये हमारे गवर्नमेंट के तहत जो CBSE बोर्ड है NCERT बोर्ड जी जी, इस बोर्ड के तहत जो है NCERT बोर्ड के तहत किताबें बुक्स चलती हैं। बाकायदा यहाँ पर हमारा 7 का स्टाफ मौजूद है और जिसमें मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाने के लिए हमारे वसीम सर मुरादाबाद से हैं जो इंग्लिश मैथ दीगर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वहीं एक शोबा क़िरात पर हमारे कारी वैद साहब हैं और दीगर हमारे उलमाए किराम जो खिदमत। तो आज तो बच्चों में बड़ा उत्साह होगा घर जाने को लेकर, प्रेशर भी कम हुआ है, आप महसूस कर सकते हैं प्रिंसिपल? जी, वाकई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने रात में 2-2, 3-3 बजे तक मेहनतें की हैं और आज मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हुए हैं तो इनके चेहरे खिले हुए हैं और घर जाने की एक खुशी महसूस हो रही है। माशाल्लाह हमारे शहर काजी शेख मुफ्ती आज़म बरेलवी माशाल्लाह तशरीफ़ लाए, हम इनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि हज़रत ने भी जो है यहाँ पर तलबा किराम के दरमियान तरबियत की और अपने बयान से, अपने अहम वक्त से नवाजा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो अभी हम बात कर रहे थे मुफ्ती नाजिर मिसबाही से, जो कि दावत इस्लामी के तहत वारसी कॉलोनी हल्द्वानी में जो मदरसा चल रहा है उसकी वो खिदमतें अंजाम देना बता रहे थे। और स्पेशल तौर पर एक बात यहाँ पर पता लग रही थी कि ये जो मदरसा है ये मुफ्त में जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उनको खिदमतें अंजाम दे रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं अगर आपको एडमिशन लेना है। मेरे साथ यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए आज मेहमान खुसूसी के तौर पर शहर काजी हैं, मैं उनसे यहाँ पर बात करूँगा। मुफ्ती मोहम्मद आज़म कादरी साहब, आपका खबर 7 के लाइव पर बहुत इस्तकबाल है। आज खुसूसी तौर पर आज आप यहाँ पर शिरकत आपने की है, मदरसे की खिदमतों को किस तरह से देखते हैं? जी माशाल्लाह, तकरीबन एक हफ़्ते पहले मुझसे आली जनाब मंजूर अत्तारी साहब और आली जनाब नदीम अत्तारी साहब ने मुझे दावत पेश की कि हज़रत हमारे यहाँ जो है एग्ज़ाम्स, एनुअली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और लास्ट इम्तिहान जो है मंडे के दिन होगा, यानी आज, तो उसमें हम इख्तितामी एक महफिल रखेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हज़रत आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। तो उनकी दावत पर, और ये हमारे बराबर में जामियातुल मदीना जो वारसी कॉलोनी में स्थित है, मुफ्ती मोहम्मद नाजिर मिसबाही साहब तशरीफ़ रखते हैं जी। माशाल्लाह यहाँ पर आके हज़रत से मुलाकात हुई और ख़ुद कफ़ील आली जनाब इरशाद अत्तारी साहब और दीगर जामियातुल मदीना के स्टाफ से मुलाकात हुई। माशाल्लाह यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा लगा। और ये दावत इस्लामी जो तंजीम है ये पूरी दुनिया में है माशाल्लाह, हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छे काम मुआशरती एतबार से भी कर रही है और दीनी एतबार से भी बड़े अच्छे काम। यहाँ पर माशाल्लाह तकरीबन 106 तलबा ज़ेर तालीम हैं जो दीनी तालीम के साथ साथ माशाल्लाह दुनियावी तालीम पर भी बहुत अच्छे से उन पर फोकस किया जा रहा है। और माशाल्लाह यहाँ तलबा बहुत अच्छी तरबियतें उनको दी जा रही हैं और बड़ी मेहनत से यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। माशाल्लाह अच्छी तालीम है, अच्छी तरबियत है। और आज आखिरी दिन है, अभी मैंने बच्चों के साथ कुछ गुफ्तगू की और उनको कुछ नसीहतें की कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह पाक की बारगाह में बस यही दुआ है, अल्लाह पाक यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के तलबा सबको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमाए, इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जनाब बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर 7 के लाइव पर। इरशाद अत्तारी साहब, मदरसे का मैनेजमेंट आप लोग करते हैं, किस तरह की दिक्कतों का सामना आता है और किस तरह से ये पूरा काम अंजाम देते हैं मदरसे का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। वैसे तो माशाल्लाह ये हमारा 2 साल से ये जामियातुल मदीना फैज़ान गरीब नवाज़ यहाँ वारसी कॉलोनी में स्थित है और माशाल्लाह इसमें जो है हमारे 106 तलबा इकराम यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। दीनी तालीम के साथ साथ यहाँ मॉडर्न एजुकेशन भी शामिल है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल ये बड़े ही अच्छे अंदाज में 2 साल से हमारा जामियातुल मदीना चल रहा है और ये दूसरे साल के हमारे जो इंज़ाम थे तो आज तलबा इकराम ने ये पूरे किए हैं। और इस सिलसिले में हमने यहाँ इसाले सवाब इज्तिमा रखा है। जो हमारे मेंबरान हैं, कमेटी वाले हैं माशाल्लाह, जो इसकी खिदमत को अंजाम करते हैं, जो इसके लिए खूब ताउन करते हैं, तो उनके भी लिए हमने ये इसाले सवाब इज्तिमा रखा है। जो उनके मरहूमीन के लिए जो कुछ हमारे जामियातुल मदीना में पढ़ा गया है, कुरान पाक पढ़े गए हैं, तस्बीहात पढ़ी गई हैं या सूरतें वगैरह जो भी कुरान पाक की पढ़ी गई हैं, तो वो उन मरहूमीन को इसाले सवाब किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल ये सिलसिला हमारा आए दिन होता रहता है, कभी महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में होता रहता है और ये इंशाअल्लाह ऐसे ही जारी रहेगा। दावत इस्लामी वो अकेली तंजीम है जो कि नमाज रोज़े की पाबंदी के साथ लोगों को ये सिखाने का काम करती है कि सच बोलें, किसी का हक न मारें, पड़ोसी का भी उतना ही ख्याल रखें जितना खुद का और अपने परिवार का। नशे को लेकर के दावत इस्लामी ने विशेष तौर पर काम किया और नौजवानों में कई बार अभियान चलाए हैं और दीन इस्लाम से जोड़कर नशे को दूर करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। हालांकि अभी नशे को दूर करना बहुत दूर अभी खड़ा है। उसके साथ साथ कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको क्रिएट करने में लगातार काफ़िले इनके निकलते हैं, 3 दिन, 6 दिन, 40 दिन के निकलते हैं और दीन के रास्ते पर
चल कर एक बेहतर नागरिक, भारत का एक बेहतर नागरिक कैसे बना जाए, उस पर भी लगातार काम होता है। तो साथियों, ये 106 स्टूडेंट का आज एग्ज़ाम इनका पूरा हुआ, तो हम ही मदरसे और इनके तमाम मामलात के बारे में भी आपको खबर दे रहे थे। बच्चों में उत्साह है, बच्चों में खुशी है अपने घर जाने की, जिस तरह CBSE के बच्चों में खुशी होती है, जिस तरह उत्तराखंड बोर्ड से जो एग्ज़ाम पास करते हैं उन बच्चों में खुशी होती है। तो साथियों, हम जामियतुल मदीना के नाम से जो मदरसा यहाँ पर चल रहा है उसके बारे में हम ये खबर दे रहे थे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी बताना ना भूलें और इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।